بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ کیا بیوی کو شوہر کے نفس کو منہ میں لینے کی اجازت ہے یا نہیں، اور اس کا شرعی حکم کیا ہے۔ اورل سیکس کے بارے میں اکثر سوالات آتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ اس پر بات کرنے سے جھجکتے ہیں اور اسے ناپسندیدہ سمجھتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ حقیقی دنیا میں رہنے والے لوگ جانتے ہیں کہ اس ٹاپک پر بحث کرنا کتنا ضروری ہے۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس پر بات کر لی جائے۔ ہر مسلمان مرد اور عورت کو اورل سیکس کے بارے میں علم ہونا چاہیے۔ اسلام میں میاں بیوی کے درمیان جنسی تعلقات کی اجازت دی گئی ہے اور انہیں نیکی شمار کیا جاتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ وہ شریعت کی حدود میں رہیں۔ قرآن مجید میں آیا ہے، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، پس تم اپنی کھیتوں میں جیسے چاہو آؤ۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ میاں بیوی مختلف طریقوں سے تعلق قائم کر سکتے ہیں، مگر شریعت نے کچھ حدود بھی مقرر کی ہیں، جیسے کہ لواطت کی ممانعت۔ اہم بات یہ ہے کہ اللہ کا نام لینے والی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے والی زبان اور قرآن کی تلاوت کرنے والے منہ کو ناپاک مقصد کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے میاں بیوی کو چاہیے کہ جنسی تعلق چاہے وہ لیٹ کر ہو یا بیٹھ کر یا کوئی بھی انداز ہو، جس انداز سے چاہیں ہم بستری کر سکتے ہیں، مگر اس میں دونوں کی رضامندی ہونی چاہیے اور اسلامی اصولوں کے مطابق ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ محبت، بوسہ اور رومانوی بات چیت جیسے جائز طریقوں سے قربت بڑھا سکتے ہیں، مگر اپنے منہ کو اور زبان کو گندا مت کریں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ نفس کو منہ میں لینے کی بات ذہن میں اتی کیوں ہے؟ اس کی وجہ ہے، وہ ہے اس وقت کا سوشل میڈیا اور گندی فلمیں۔ اس لیے ہر مرد، عورت اور ہر میاں بیوی کو فحش مواد سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ غلط چیزیں جنسی خیالات کو غلط راستے پر لے جاتی ہیں۔ میاں بیوی کو چاہیے کہ شریعت میں بیان کردہ جائز جنسی تعلقات، مختلف پوزیشنز، بوس، اکنار، پیار وغیرہ پر عمل کریں اور غلط طریقے سے ایک دوسرے کو جنسی لذت مت دیں۔ تو اس ویڈیو کا مختصر نچوڑ یہ ہے کہ مرد و عورت کا ایک دوسرے کی شرمگاہ کو چاٹنا یا بیوی کے لیے شوہر کا ذکر منہ میں لینا مکروہ ہے، اور یہ عمل غیر شریفانہ اور غیر مہذب عمل ہے۔ میاں بیوی کا ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دکھنا بھی غیر مناسب ہے۔ پھر زبان جس سے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اس سے شرمگاہ کا بوسہ لینا وغیرہ کسی بھی طرح مناسب معلوم نہیں۔ نیز یہ جانوروں کا طریقہ ہے، اس لیے بہر صورت ایک مسلمان کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ شادی کی پہلی رات یعنی سہاگ رات، اس رات میاں بیوی کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، اس کا صحیح اسلامی طریقہ کیا ہے، اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ اس پر تفصیل سے بات کروں گی۔ اس ٹاپک پر بات کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اسلام ہماری زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی کرتا ہے۔ کھانے، پینے، سونے، اٹھنے، چلنے، بیٹھنے اور کاروبار کرنے کے طریقے سکھاتا ہے۔ ہم آگے بڑھنے سے میں امید کروں گی کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے، تو چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جب آپ کمرے میں داخل ہوں، یعنی دوستوں سے مل کر پہلی رات کمرے میں داخل ہو رہے ہوں، تو اپنی بیوی کو سلام کریں۔ جب آپ کمرے میں جائیں تو سلام کے بعد بیوی کی پیشانی کے بال پکڑ کر دعا مانگیں۔ دعا کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: اے اللہ، میں تجھ سے اس کی بھلائی اور اس بھلائی کا سوال کرتا ہوں جس پر تو نے اسے پیدا کیا، اور میں اس کی برائی اور اس برائی سے تیری پناہ مانگتا ہوں جس پر تو نے اسے پیدا کیا۔ یہاں میں ایک بات بتاتی چلوں کہ جب آپ یہ عمل کریں تو پہلے بیوی کو بتا دیں کہ میں ایک دعا پڑھنے جا رہا ہوں جو سنت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اچانک پیشانی کے بال پکڑ لیں اور اس کے ذہن میں غلط فہمی پیدا ہو کہ یہ کیا کر رہا ہے، کوئی جادو وغیرہ تو نہیں کر رہا۔ لہٰذا پہلے بتا دیں کہ یہ سنت ہے۔ پہلی رات میں بیوی کو کوئی تحفہ ضرور پیش کریں، یعنی کوئی گفٹ دیں، یا پھر کوئی کھانے کی چیز ساتھ لے جائیں جو آپ خود بھی کھائیں اور اپنی بیوی کو بھی کھلائیں۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ محبت بڑھے گی، کیونکہ اس سے ایک اچھا پیغام جاتا ہے۔ اسے منہ دکھائی کہتے ہیں۔ منہ دکھائی میں کوئی تحفہ لے جائیں، کوئی گفٹ پیش کریں، پھر بیوی کے ساتھ بات چیت شروع کریں، اپنا اور اپنے گھر والوں کا تعارف کروائیں، آپ کو جو چیز پسند ہے اور جو نہیں پسند دونوں بتا دیں۔ اس کے بعد شکر کے نفل ادا کریں۔ یہاں میں ایک بات بتاتی چلوں کہ اگر آپ نے اس دن عشاء کی نماز نہیں پڑھی تو سب سے پہلے عشاء کی نماز پڑھیں۔ بہت سارے لوگوں کی عشاء کی نماز قضا ہو جاتی ہے، لیکن ایسا نہ کریں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کی نماز قضا ہو جائے اور آپ شکر
के नफल पढ़ने लगें। अगर आपने नमाज नहीं पढ़ी तो पहले नमाज अदा करें। बीवी को भी हुक्म दें कि वो इशा की नमाज अदा करे। आप भी इशा की नमाज पढ़ें और उसके बाद 2 रकात शुक्र के नफल पढ़ें। इसके बाद बात को आगे बढ़ाएं। यहाँ मैं आपको ये बताती चलूं कि शादी की पहली रात बीवी के साथ हम बस्तरी करना कोई फर्ज नहीं है और न ही ये जरूरी है कि पहली रात ही बीवी से जमा किया जाए। ये मुकम्मल तौर पर बीवी की रजामंदी पर मुनहसर है। अगर बीवी राजी हो तो हम बस्तरी करना ठीक है, वरना जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर आप बीवी की रजामंदी के बगैर हम बस्तरी करेंगे तो उसके जहन में ये ख्याल आ सकता है कि मर्द सिर्फ हम बस्तरी के लिए शादी करते हैं। हाँ, अगर बीवी राजी हो तो फिर अब प्यार और मोहब्बत करने बाद हम बस्तरी कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको ये बात बताती चलूं कि हम बस्तरी के वक्त मुकम्मल बरहना होना नाजायज तो नहीं, लेकिन बेहतर है कि कोई चादर या कपड़ा ऊपर रख जाए। अगर कोई मुकम्मल कपड़े उतार कर मुबाशरत करता है तो ये भी जायज़तु है, लेकिन बेहतर तरीका यही है कि कुछ पर्दा रखा जाए ताकि हया और इज्जत व एहतराम का पहलू बरकरार रहे। हम बस्तरी के बाद फौरन बीवी से अलहीदा ना हो, बल्कि कुछ देर मोहब्बत भरी बातें करें ताकि जज्बाती ताल्लुक मजबूत हो। हम बस्तरी के वक्त अंधेरे का माहौल बनाया जाए ताकि ज्यादा पर्दे और हया का ख्याल रखा जा सके। खुली रोशनी में मुबाशरत करना जायज तो है, लेकिन इस्लाम में हया को मद्देनजर रखते हुए रोशनी धीमी रखने की तरगीब दी गई है। हम बस्तरी के फौरन बाद गस्ल करना चाहिए। अगर मुमकिन हो तो फौरन गस्ल कर लेना बेहतर है, लेकिन अगर फौरन गस्ल न कर सकें तो कम से कम वजू कर लें या इस्तंजा कर लें, ये भी ठीक है। एक और बात, अगर मियाँ बीवी एक ही रात में दोबारा हम बस्तरी करना चाहते हैं तो बेहतर यह है कि गस्ल कर लें। अगर गस्ल मुमकिन न हो तो कम से कम वजू जरूर कर लें और शर्मगाह को साफ कर लें। इससे ताजगी होगी पैदा होगी और आप खुद को तरोताजा महसूस करेंगे। अगर दोबारा हम बस्तरी के लिए वजू न करें तो भी ये जायज है, लेकिन गस्ल या वजू करना अफजल है। नाजरीन, शादी की पहली रात के बारे में जो बातें मियाँ बीवी के दरमियान होती हैं उन्हें दूसरों के साथ शेयर करना हराम है और ये कबीरा गुनाह है। अक्सर देखा जाता है कि सुबह के वक्त लड़के के दोस्त लड़के से और लड़की की सहेलियां लड़की से पूछती हैं कि रात को क्या हुआ, हालांकि शरीयत के मुताबिक ये बिल्कुल हराम है। ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए। तो नाजरीन, ये था शादी की पहली रात का इस्लामी तरीका जो मैंने आपके साथ शेयर किया। कुछ लोग कह सकते हैं कि इस तरह की बातें शरीयत के खिलाफ हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने कोई ऐसी बात नहीं की जो शरीयत के खिलाफ हो। अल्लाह हम सबको समझ अता फरमाए, आमीन। नाजरीन, क्या आप चाहते हैं कि आपकी बीवी आपसे ये कहे कि अब बस भी करो, बहुत हो गया, मैं थक गई हूँ, मेरी हिम्मत जवाब दे गई है? तो ये वीडियो खास आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको वो राज बताऊंगी जो आपकी ताकत को दोबारा जिंदा कर देगा। फिर इंशाअल्लाह आपकी बीवी आपसे ये कहेगी, अब बस भी करो, बहुत हो गया, मैं थक गई हूँ। मगर ये अल्फाज सुनने के लिए आपके अंदर मर्दाना ताकत भी खूब अच्छी होनी चाहिए। फिर ही बीवी आपसे खुश होगी और वो ये कहने पर मजबूर हो जाएगी कि मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अब ऐसी ताकत को हासिल करने के लिए मैं आपको एक ख़ास चीज़ के बारे में बताऊंगी और उसका नाम है किशमिश। जी हाँ, किशमिश। किशमिश, इसका नाम आप सभी ने सुना होगा, मगर इसको इस्तेमाल कैसे करना है, इसके फ़ायदे और नुकसानात क्या है, मर्दों को मर्दाना ताकत बढ़ाने के लिए इसको किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, ये सब बातें आज मैं आपको बताऊंगी। वैसे तो किशमिश की मुख्तलिफ अक़साम मार्केट में दस्तयाब हैं, मगर मुर्दों के लिए काली किशमिश सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद समझी जाती है, क्योंकि इसमें आयरन, एंटीऑक्सीडेंट्स और टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने वाले अनासिर ज़्यादा पाए जाते हैं। दूधिया या हरी किशमिश नरम होती है और इस्तेमाल में आसान रहती है, मगर वो जिस्म को ठंडक देती है। इसलिए अगर आप हरारत और ताकत चाहते हैं तो काली किशमिश को तरजीह दें। पहला फ़ायदा, बिस्तर पर ज़बरदस्त स्टेमिना। अक्सर रात के वक्त लोग कहते हैं, आज नहीं, बहुत थक गया हूँ, हम बिस्तरी करने का दिल नहीं करता। बीवी के साथ होते हुए भी शौहर का दिल नहीं करता। लेकिन अगर आप रोज़ाना किशमिश खाएं तो ना सिर्फ तवानाई बरकरार रहती है, बल्कि हम बिस्तरी को दिल भी करेगा। आपके नफ्स में सख्ती आएगी और हर बार जोश व जज्बे से भरपूर रहेंगे और बीवी भी खुश हो जाएगी। दूसरा फ़ायदा, आजकल बहुत से मर्द ये शिकायत करते हैं कि उनकी मनी पतली है,
कम मिकदार में आती है या बहुत जल्द खारिज हो जाती है। ऐसे वक्त में किशमिश एक कुदरती नेमत साबित होती है। इसमें मौजूद ग़िज़ाई अनासिर जिस्म में मनी की पैदावार को तेज़ करते हैं और इसे गाढ़ा, खालिस और ताकतवर बनाते हैं। अगर आप रोज़ाना किशमिश अपनी खुराक में शामिल कर लें तो चंद दिनों में ही आप महसूस करेंगे कि जिस्म में नई तवानाई दौड़ रही है और ताकत में वाज़े इजाफा हुआ है। तीसरा फ़ायदा, बैलों जैसी ताकत सिर्फ एक मुट्ठी किशमिश से। आप सोच रहे होंगे ये कुछ ज़्यादा हो गया, लेकिन हकीकत यही है। अगर आप रात को 15 से 20 किशमिश भिगोकर सुबह खाएं तो असर ऐसा महसूस होगा जैसे जिस्म में फौरी तवानाई का ज़बरदस्त धक्का लग गया हो। ये थकन दूर कर देता है। सुबह उठते ही ताजगी और तवानाई का एहसास होता है और सबसे अच्छी बात यह है कि आपका मूड पूरे दिन के लिए मुस्बत और खुशगवार रहता है। चौथा फ़ायदा, मर्द की कारकर्दगी और ताकत का ताल्लुक बराह रास्त दिल की सेहत से है। जब दिल मजबूत हो तो खून पूरे जिस्म में आज़ादी से और ताकत के साथ गर्दिश करता है। किशमिश में मौजूद पोटाशियम और आयरन दिल को मजबूत बनाते हैं, ब्लड प्रेशर को 100 से 120 तक महदूद करते हैं, मुतवाज़न रखते हैं और खून को साफ करते हैं ताकि रगें खुली रहें। यूं किसी रुकावट के बगैर ताकत का बहाव जिस्म में मुसलसल जारी रहता है। पांचवा फ़ायदा, जो मर्द औलाद की मंसूबाबंदी कर रहे हैं उनके लिए किशमिश एक कीमती नेमत है। ये न सिर्फ स्पर्म की तादाद बढ़ाती है बल्कि स्पर्म की क्वालिटी को भी बेहतर बनाती है और जिस्म को वो कुदरती हरारत फराहम करती है जो ज़रख़ेज़ी के लिए ज़रूरी है। इसी वजह से पुराने ज़माने में शादी से पहले नौजवानों को किशमिश, छोहारा और गाय का दूध लाजमी दिया जाता था। छठा फ़ायदा, अगर आप रोज़ रात को भीगी हुई किशमिश खा लेते हैं तो चंद दिनों में आपके अंदर वो ताकत आ जाएगी कि घोड़े की तरह दौड़ सकें, हाथी की तरह काम कर सकें और शेर की तरह दहाड़ सकें। किशमिश आपके जिस्म में खून बढ़ाती है, हार्मोन्स को बैलेंस करती है और टेस्टोस्टेरोन की सतह बुलंद करती है। सातवां फ़ायदा, अगर आप जम जाते हैं या बॉडी बनाना चाहते हैं तो किशमिश एक कुदरती प्री वर्कआउट है। ये आपकी भूख बढ़ाती है, मेटाबॉलिज्म को तेज़ करती है और जिस्म को मसल्स बनाने के लिए दरकार तवानाई फराहम कर है। रात में किशमिश भिगोकर खाइए, सुबह हल्की वर्जिश कीजिए और फिर देखिए चंद हफ्तों में जिस्म में किस कदर ताकत और सख्ती आ जाएगी। किशमिश खाने का सही तरीका। जी हाँ, मैं आपको ये बताऊंगी कि किशमिश को खाने का सही तरीका क्या है ताकि इसका असर 10 गुना बढ़ जाए। कौन सी किशमिश सबसे ज़्यादा ताकतवर है, किस वक्त खानी चाहिए ताकि ज़्यादा असर करे और किन लोगों को किशमिश से परहेज़ करना चाहिए। रात में किशमिश भिगोकर सुबह खाली पेट खाना इंतहाई मौसर तरीका है। सोने से पहले 15 से 20 किशमिश एक प्याली में डालें, ऊपर आधा कप नीम गर्म पानी डालें और ढककर रात भर रख दें। सुबह उठकर इन किशमिशों को चबाकर खाएं और जो पानी बचा हो वो भी पी लें। ये सादा अमल आपके जिस्म में अंदरूनी हरारत पैदा करता है, तवानाई बढ़ाता है और दिन भर थकन कम महसूस होती है। अगर आप कुव्वते जिस्म और स्टेमिना बढ़ाना चाहते हैं तो सुबह खाली पेट किशमिश बेहतरीन है और अगर आप रात के वक्त बिस्तर पर जोश बढ़ाना चाहते हैं तो किशमिश को सोने से तकरीबन 1 घंटा पहले खा लें। मगर भिगोकर खाने का असर कच्ची किशमिश की निस्बत तेज़ और ज़्यादा वाज़े होता है। किशमिश को इस्तेमाल करने के और भी कई तरीके हैं जिनमें से चंद एक मैं आपको बता देती हूँ। किशमिश को गर्म दूध के साथ लेना मनी की मिकदार और कुव्वत में इजाफा करता है। किशमिश, खजूर और बादाम का मिलाप आपको ताकतवर बनाता है और किशमिश में थोड़ा सा देसी घी मिलाकर खाने से जिस्म में फौरी हरारत महसूस होती है। रात को 5 खजूर और 10 किशमिश भिगोकर सुबह दोनों चीज़ें चबाकर खाएं और ऊपर से नीम गर्म दूध पी लें तो जोड़ों का दर्द, कमर की तकलीफ और सुस्ती बहुत हद तक कम हो जाती है और आपको ताजगी महसूस होती है। अश्वगंधा के साथ किशमिश का इम्तिजाज भी बेहतरीन असर दिखाता है। 1 चम्मच अश्वगंधा पाउडर,
10 किशमिश और आधा ग्लास गर्म दूध मिलाकर रात को सोने से पहले लेने से 1 हफ्ते के अंदर आपको महसूस होगा कि अंदर एक नई बैटरी सी जड़ गई है और मकबूल तवानाई में फ़रोग़ आता है। इसी तरह 7 किशमिश, 1 चुटकी जायफल पाउडर और 2 रेशे ज़ाफ़रान आधा कप दूध में रात भर भिगोकर सुबह दूध गर्म करके पीना दिमाग की चुस्ती, जिस्म की फिरती और रात में जोश बढ़ाता है। ये वो नुस्खे हैं जो गांव के बुजुर्ग सदियों से इस्तेमाल करते आए हैं। कौन लोग ना खाएं किशमिश? अब कुछ ज़रूरी एहतियात भी जान लीजिए। किशमिश बहुत ताकतवर चीज़ है, लेकिन कुछ लोगों को संभल कर खानी चाहिए। जिन्हें शुगर है उन्हें महदूद मिकदार में ही खानी चाहिए। जिनका पेट बहुत गर्म रहता है उन्हें काली किशमिश ज़्यादा मिकदार में नहीं लेनी चाहिए। बहुत ज़्यादा किशमिश खाने से मुंह में छाले या डायरिया हो सकता है, इसलिए इब्तिदा में सिर्फ 15 किशमिश से शुरू करें। फिर आहिस्ता आहिस्ता अगर जिस्म साथ दे तो मिकदार बढ़ा सकते हैं। किशमिश सिर्फ एक मामूली फल नहीं बल्कि मर्दाना ताकत बढ़ाने का एक खुफिया राज है। ये जिस्म में छुपी हुई तवानाई और कुव्वत को बेदार कर देता है। अगली बार जब मार्केट जाएं तो लाजमी तौर पर कुछ काली किशमिश ले आएं और आज ही से इसे अपनी खुराक में शामिल कर लें ताकि आपकी ताकत और जोश में फ़र्क महसूस हो। आखिर में याद रखें कि सेहत को अव्वल रखें, हद से ज़्यादा मिकदार से गुरेज करें और किसी किस्म की गैर मामूली अलामत महसूस होने पर फौरी डॉक्टर से रुजू करें। आज मैं आपको एक ऐसा देसी और घरेलू नुस्खा बताऊंगी जो आपके नफ्स की मुर्दा रगों में न सिर्फ जान डाल देगा बल्कि बीवी खुद कहेगी कि बस हो गया, इसको जल्दी से ख़त्म करो, बर्दाश्त ख़त्म होती जा रही है। जी हाँ, आज का नुस्खा सख्ती और टाइमिंग दोनों का है। हर वो शख्स जो शादीशुदा हो वो ज़रूर ये चाहेगा कि इसका उज़्व हमेशा मजबूत रहे, इसे अच्छा और पूरा वक्त मिले ताकि बीवी के साथ भरपूर ताल्लुक़ कायम कर सके और वो अपनी बीवी के साथ नॉन स्टॉप लगा रहे, इसकी ख्वाहिश भी बढ़ती रहे और इसका दिल, दिमाग और जिस्म तीनों सेहतमंद रहें। मेरा मानना है कि ऐसा कोई मर्द नहीं होगा जो ये 3-4 चाहतें अपने अंदर ना रखता हो, लेकिन वो मुख्तलिफ रास्ते तलाश करता है। आज इन्हीं रास्तों में से एक खूबसूरत रास्ता मैं आपको बताने जा रही हूँ जो आपके किचन से मिल जाएगा। आपके घर के किचन में छुपा हुआ एक राज है। आज इस किचन के दरवाजे को खोल लेते हैं और इसके अंदर से एक कीमती नुस्खा निकाल के तैयार कर लेते हैं। अगर आपका इंजाल सेक्स में 2 मिनट से पहले हो जाए तो ये किब्ल अज़ वक्त इंजाल कहलाता है। इसी तरह अगर जिनसी ख्वाहिश कम हो जाए तो ये भी शादीशुदा जिंदगी के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि दोनों बातें बीवी को खुश नहीं रखती। न बीवी कम टाइम को पसंद करती है और न ही किसी कमजोरी को, बल्कि बीवी चाहती है कि उसका शौहर उसे के साथ नॉन स्टॉप लगा रहे। इसलिए आज मैं आपको ऐसा नुस्खा बताने जा रही हूँ जो इन 2 मसाइल से निजात दिलाने में मदद करेगा, यानी टाइमिंग और सख्ती, दोनों चीज़ें। ये नुस्खा न सिर्फ किबलस वक्त इंजाल और कम जिनसी ख्वाहिश को दूर करता है बल्कि ओवर थिंकिंग, बेख्वाबी और घबराहट को भी कम कर देता है। आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या है। ये उज़्मे तनाव की कमी को कहते हैं। उज़्मे तनाव की कमी आने के 2 बड़े बड़े सबब हैं, अगरचे और भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़े 2 ये हैं। नंबर 1, या तो आप ज़हनी तौर पर किसी न किसी तरह बीमार हैं, दबाव में हैं, एंग्जाइटी या डिप्रेशन के मरीज़ हैं। नंबर 2, आपके उज़्व की खून की नालियाँ सही काम नहीं कर रही। अगर इन दोनों में से कोई भी कमी आ जाती है तो आपके उज़्व का तनाव कमज़ोर होने लगता है, ख़राब होने लगता है। अब चलते हैं दूसरी तरफ। वक्त से पहले इंजाल क्या है? वक्त से पहले इंजाल ये है कि आप 2 मिनट से पहले पहले सेक्स में वजाइना में इंजाल हो जाएं। 2 मिनट से कम वक्त अगर आपके पास है तो आप पर एक टैग लग जाता है,
وقت سے پہلے انزال کا، قبل از وقت انزال کا، اور یہ دونوں چیزیں میاں بیوی کو خوش نہیں رکھتی، ان کے درمیان کے تعلق کو خراب کر دیتی ہیں۔ اس کے ہونے کے پیچھے بھی وہی وجہ ہے جو اریکٹائل ڈس فنکشن کے پیچھے ہے۔ یا تو آپ ذہنی مریض ہیں یا آپ کے جسم میں کوئی بیماری چھپی ہوئی ہے جو وقت سے پہلے انزال کا سبب بن رہی ہے۔ تیسری چیز کی طرف آتے ہیں جس کو میں نے کہا تھا کم جنسی خواہش، یعنی سیکس کی چاہت کا کم ہو جانا۔ یہ اس بات کی مضبوط علامت ہے کہ آپ کے ہارمون درست نہیں ہیں، بیلنس میں نہیں ہیں۔ یاد رکھیں، یہ وہ 3 چیزیں ہیں جو کسی بھی مرد کی جنسی زندگی کو خراب کر دیتی ہیں۔ تو میں انہی 3 چیزوں سے بچنے کے لیے ایک قدرتی نسخہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہی ہوں۔ کچھ چیزوں کی آپ کو ضرورت ہے اور یہ ساری چیزیں آپ کے کچن میں مل جائیں گی۔ یقین جانیں، جو چیز میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں یہ سائنٹیفکلی ثابت شدہ ہے۔ سائنس کے شواہد اس کے پیچھے موجود ہیں۔ میں بات کر رہی ہوں جائفل اور جاوتری کی۔ جی ہاں، آپ نے سن رکھا ہوگا، ارے یہ تو بہت عام سی چیز ہے۔ ہاں، یہ بالکل عام سی چیز ہے، لیکن اس عام چیز کو آپ تک نہیں پہنچایا جاتا، بتایا نہیں جاتا۔ وجہ یہی ہے کہ اگر اس کو کھول کر سامنے رکھ دیا جائے تو یہ جو نام نہاد شاندار سپلیمنٹس ہیں یہ کیسے بیچے جائیں گے، ان کا پروموشن کیسے ہوگا؟ اب کرنا کیا ہے اور نسخہ تیار کیسے کرنا ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے اصلی جائفل خریدنی ہے۔ دوسری چیز، آپ نے اصلی جاوتری خریدنی ہے۔ تیسری چیز، آپ کو اصلی شہد چاہیے جو نیچرل اور خالص ہو۔ اور چوتھی چیز، آپ کو اپنی پسند کی کافی چاہیے۔ آپ نے 1.5 سے 2 گرام جائفل کا پاؤڈر لینا ہے، 1.5 سے 2 گرام جاوتری کا پاؤڈر لینا ہے اور 1 چمچ شہد لینا ہے۔ ان تینوں چیزوں کو اچھی طرح ملا کر ایک پیسٹ بنا لیں۔ یہ پیسٹ آپ نے صبح خالی پیٹ چاٹنا ہے۔ اگر صبح خالی پیٹ لینا مشکل ہو تو دن کے کسی بھی وقت لے سکتے ہیں، رات کو سونے سے 1 گھنٹہ پہلے بھی لے سکتے ہیں۔ جن لوگوں کو نیند کی پریشانی ہے وہ رات کو استعمال کریں، اور جو لوگ اسے طاقت کے لیے لینا چاہتے ہیں وہ صبح 1 کپ بلیک کافی کے ساتھ استعمال کریں۔ بلیک کافی میں 1 چمچ کافی ڈالیں، پانی ڈالیں اور اگر میٹھا چاہیے تو چینی ڈالیں۔ اس کے ساتھ یہ پیسٹ چاٹ لیں اور آدھے گھنٹے تک کچھ نہ کھائیں نہ پئیں۔ جو لوگ صرف طاقت اور نیند دونوں چاہتے ہیں وہ کافی کو نکال دیں اور رات کو سونے سے آدھا گھنٹہ پہلے یہ پیسٹ استعمال کریں اور پھر سو جائیں۔ اس لیے اس کو لگاتار 5 دن استعمال کیجئے اور پھر اپنے تاثرات کمنٹس میں ضرور بتائیے۔